Question number 6, sub question 1. Okay, substitution method. Now both the variables x and y, here both the variables x and y are in the denominator. तो दोनों को substitute करना पड़ेगा. कैसे? Let 1 upon x be a and 1 upon y be b. Okay, 1 upon x be a and 1 upon y be b. Okay. तो 1 अपॉन एक्स को अगर a ले लिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 7a plus 6b equals 71. This will be my first equation. Okay, and my second equation is 5 upon x minus 8 upon y equals minus 23. So this will become 5a minus 8b equals minus 23. Okay, so this will be your equation 1 and this will be your equation 2. Okay, once you have the equations, what are the steps we follow? Yes, who will tell the answer? Harsh. Yes, sir. Yes, Harsh, tell me what should be done here. So now we should do the plus minus step. But before that, I have to choose a variable to cancel. So what? मुझे किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होगा, चूज करना होगा. So wait a minute. I cannot hear. हेलो Sir. तो यहाँ पे पहले मुझे ये बताओ कि मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? कौन से वेरिएबल को सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यू हैव टू चूज व्हिच वेरिएबल यू आर सेम. ठीक है, तो कौन सा वेरिएबल को सेम बनाओगे, ए को या बी को? 6 and 8 1 b. ओके, 6 and 8. देन 6 and 8 का एलसीएम क्या होता है? 6 and 8. अभी अपन साल के पहले तो सेटिंग कर लेते हैं क्योंकि मेरा कंपनी है तो करंट में यस सर. फर्स्ट एलसीएम कैसे लेते हैं? अच्छा आया ये आया वो है ये आया टॉपिक से तो वो फिर कैसे दिखा सकते हो वो दिखाओ. कैसे लेते हैं ना एलसीएम? क्या आया मुझे बताओ, एलसीएम क्या आया? 24 आया. 2 into 2 into 2 8 into 3 24 आया एलसीएम. करेक्ट. ठीक है, अगर 24 आया तो मुझे बताओ, अभी ये मेरा इक्वेशन 2 था, तो अब मैं 24 लाया तो मैं अभी इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 24 से मल्टीप्लाई करूँ. ये 6 को 24 बनाना है ना हर्ष? हाँ, तो इसको 8 से 6 8 से 24 होता है क्या? 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? आराम से सोचो. 4 से 6 4 जा 24 हो जाएगा. और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 8b को, मतलब ये पूरे इक्वेशन को किससे करूँ? 3. करेक्ट. तो अब ये पूरा इक्वेशन जो है 1, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो सेकंड पूरा इक्वेशन है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा. करेक्ट. ये सर याद रहेगा? ओके, चलो ध्यान दो.
So now let's multiply the equation with 4. So 28a plus 24b equals 71 into 4 is 284. Okay, and then second equation we are multiplying it with 3. So 15a minus 24b equals 3 3s are 9, 3 2s are 6, minus 69. Okay. Now who will tell me? Yes, Pakshal. Pakshal, यहाँ पे ऐड करना चाहिए या सबट्रैक्ट करना चाहिए? सब add क्यों ऐड करना चाहिए? sir because the signs are different. करेक्ट. यहाँ 24 प्लस 24 एंड माइनस 24 है, सो साइंस आर डिफरेंट, तो मैं इसको ऐड करूंगा. करेक्ट. सो 28 प्लस 15 कितना होगा? 28 plus 15 will give me 43a. Okay, plus 24 minus 24 will cancel, equals 284 minus 69. तो कितना आया? This is 215. ओके, तो a क्या होगा? 215 upon 43. 215 upon 43. So what will be the value of a? Sir, 5. Correct. Correct, Drishti. The value of a will be 5. Okay. तो a मिल गया 5. अभी अगर a 5 मिल गया तो b कैसे मिलेगा? Yes, Drishti, can you tell me how to get b? Yes, sir, we have to put A5 in equation 2. Equation 2 or equation 1, you can put it in any equation. Yes, sir. So I am putting in equation 1. 7a plus 6b equals 71. तो a को 5 मैं यहाँ पे पुट करूंगा. So 7 into 5 plus 6b equals 71. So 35 plus 6b equals 71. So 6b equals 36. So b equals 6. Copy this. Yes sir. Any doubt, Pakshal, Saksham? You raise your No hand. sir. No? sir, no, sir. No sir. Okay. ठीक है, a और b की वैल्यू मिल गई है. ओके, नाउ हु विल टेल मी? Yes, Jasmine, what will be the next step? Yes, Saksham. Now we know that a is 5. So 1 upon x equals to a था.
ओके, सो 1/x इक्वल्स 5, तो 5 यहाँ पे आएगा और x वहाँ पे जाएगा, सो x विल बी 1/5. ओके, एंड 1/y is equal to b, so 1/y equals 6, so 1/6 equals y. This is my values of x and y. Yes, done. Next sum now. All 4 questions are same. So now I'll do the question number sub question 3. I'll do sub question 3. I hope you have copied this, all of you. Yes, start the sum. Start solving the sum. Now again, let 1/x equals a, 1/y equals b. Okay, so 15a plus 4b equals 7, and this will be 9a minus 8b equals -1. Equation 2. Equation 1, equation 2. Correct, Sadali. Now I will write them one below the other. -1. Now which variable should I make same? Yes, answer me in the chat box. Which variable should I make same? Correct, Saad, Arib, Vian, Veer, correct. Arib, you have made a mistake. Latish, Krishna, correct. सी यहाँ पे सिंपल दिख रहा है एकदम, दैट यहाँ पे 8 है, 8b है, यहाँ पे 4b है, तो यू कैन इजीली मेक देम सेम. इस इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4b का 8b बन जाएगा, एंड दिस बोथ वेरिएबल विल बिकम सेम. ओके, तो एकदम सिंपल है. सो आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, एंड सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब किसी से नहीं करना, मतलब 1 से करना. ठीक है,
So 15 का 15 into 2 is 30a plus 8b equals 14 and 9a minus 8b equals -1. Okay. Now should I add or subtract here? Signs are different. माइनस और प्लस साइंस डिफरेंट है तो हम ऐड ही करेंगे, कोई टेंशन नहीं है. 30 plus 9 is 39a. This will get cancelled. 14 minus 1 is 13. ठीक है, तो a क्या मिला? 13 upon 39. ये 39 नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे. 13 upon 39 that is 1 upon 3. a मिल गया 1 upon 3. a is 1 upon 3. If a is 1 upon 3, put a in equation 1. Put the value of a in equation 1. Correct? So I'll put the value of a in equation 1. So what is my equation 1? 15a plus 4b equals 7. तो a की जगह पे आ जाएगा 1 upon 3 plus 4b equals 7. So 3 1 जा 3 5 जा कैंसिलेशन हो जाएगा यहाँ पे. So 5 plus 4b equals 7. So 4b, this 5 will go on the right hand side. 7 minus 5. So 4b is 2. So b is 2 upon 4. That is 1 upon 2. तो b की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई. ठीक है, a is also ready, b is also ready. So based on a and b, you can find the value of x and y. ठीक है, तो क्या मिलेगा? 1 upon x equals a है, तो 1 upon x equals a की वैल्यू क्या है? 1 upon 3. याद रखना 1 upon 3 है a की वैल्यू इस बार. ठीक है, तो वह x कैसे मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. ये 3 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये x इधर 1 से. सो 3 equals x. So I got x as 3. Okay, I've got x as 3. And b को मैं इधर फाइंड करता हूँ. 1 upon y equals 1 upon y equals b. ठीक है, and b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 1 upon 2. So when you cross multiply, 2 is equal to y, means y is equal to 2. This is my answer. Write your solution set 3, 2. Yes. Yes, Bakshal, any doubt? No, sir. Yes, Saad Ali, any doubt? So I could understand from where you wrote a is equals to 1 upon 3. After that, I couldn't understand. See here. I said we have found the value of a. So we will use this value of a now. ठीक है, and we will find b. तो आपने क्या किया? Put a in equation 1. This is my equation 1. Yes. ये equation 1 लिखा और a की जगह पे I put 1 upon 3. Yes, here. ठीक है. That I understand that b is equals to 1 upon 2. Here Okay. from the margin, you Here. made the margin and 1 upon x is equals to a. हाँ, correct. So After here, that. see a और b की वैल्यू मिल गई हमें. ठीक है, we have got the values of a and b. तो अभी x और y ढूंढना है ना. तो इन द बिगिनिंग हमने क्या किया था? 1 upon x को a लिया था. Yes. करेक्ट. सो इन द प्लेस ऑफ a, अब a का आंसर क्या है? a का आंसर है 1 upon 3. ठीक है, तो 1 upon x is 1 upon 3. तो अब ये x इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा. तो 3 into 1 will give you 3, x into 1 will give you x. So what did you get? You get x equals 3. 3. Same way you have to find b also. Thank you, sir. Okay.
Sub question 2 and sub question 4 will be homework. Now let's do question number 7. I'll erase this. I hope everyone has copied it. Sub question 2 and sub question 4 is for homework, Manav. Let's start with question number 7. Question number 7 is similar to question number 6. It will look like a very big sum, okay, but in the end, मतलब lengthy है sum, ठीक है, but not so difficult. Concept remains the same. So lengthy है, but still it is easy and scoring. Okay, now how to solve this? See, जैसे पिछले सम में 12 अपॉन एक्स था, तो आपने 1 अपॉन एक्स को a लिया था, ठीक है. In the same way, in these sums what we have to do is we will take, ये डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, ठीक है, तो ये पूरा जो अपॉन x प्लस वाई है, इस पूरे पार्ट को लेट 1 अपॉन x प्लस वाई, बिकॉज सी 9 अपॉन x प्लस वाई का मतलब क्या होता है? 9 अपॉन x प्लस वाई इज नथिंग बट 9 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई. ये 9 को अगर मैं साइड में कर लूँ तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ये है जो प्रॉब्लम दे रहा है सम सॉल्व करने में, ठीक है. तो इस पूरे को हम a बना देंगे, a, ठीक है. तो लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी a एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी b. तो इससे क्या हो जाएगा? ये आपका जो इक्वेशन है दिस विल रिड्यूस टू 9a प्लस 5b equals 8. Okay, similarly the second equation, this will be our equation 1, and this second equation will reduce to 12a plus 7b equals 11. Okay, दो equations मिल गए. Now once you have two equations, write them one below the other to see which variable I can cancel. Heath is asking me if the sign is same. ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा Heath. साइन सेम हो जाएगी तो एलसीएम ले लेंगे सीधा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, यस हर्ष. So we can symbolize 9 and 12. 9 and 12. So what will be the 48. LCM of 9 and 12? 48. 48. No, not 48. 9 के टेबल में 48 कहाँ आता है? अरे हाँ sorry. बरोबर सोच रहे हो आप, 9 और 12 को ही करेंगे, लेकिन वापस एक बार करके देखो LCM. Yes, Ali. Yeah. What did you say? You said, और इतना फास्ट खुद को अनम्यूट कर दिया, घाई लगी आपको. अच्छे से आंसर दो. 12 कैसे हो सकता है? 9 के टेबल, 9 को 12 कैसे बनाओगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे?
12 नहीं हो सकता। सोचो सोचो। 36। ओके। यस कली। 35. व्हाट? Sir, 32. 35. 35? अच्छा तो Sir, 35. अच्छा you are equating B 7 and 5. Sir, 32. Kali, are you equating the second variable? Yes, sir. Okay, if you are equating the second variable, then it is 35. Okay. But what about the first variable? If I equate the first variable, what could be the LCM here? Heath 32 wrong है आपका. नाइन और 12 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 9 2 6 जा 2 3 जा, then I'll take 3 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 1 जा, so 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 9 4 जा 36 एलसीएम आएगा 12 और 9 का. ओके, बी से भी कर सकते हैं बट ए से थोड़ा इजी होगा आई गेस. तो अभी 9 को 36 बनाना है. 9 को अगर 36 बनाना है तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 को 36 बनाना है तो यस हर्ष. 9 को 4 से और 12 को 3 से. 12 को 3 से, करेक्ट. सो अभी 9 को 4 से तो दिस विल बिकम 36a प्लस 5 को 4 से करेंगे तो 20b एंड 8 4 जा 32 एंड 12 3 जा 36a प्लस 7 3 जा 21b इक्वल्स 33. Okay, now who will tell me, should I add or should I subtract? Yes, Kanishka. Yes, sir. Should I add or subtract here? Subtract. Why? Correct. So both 36 and 36 both are plus. Okay, दोनों की sign same है. So I will subtract. Very good. So if I subtract, what do I have to do? Change the sign. Change the signs of Second. second equation. Very good. So this will become minus 36. This will become minus 21, and this will become minus 33. Okay. So 36 minus 36 can cancel. 20b minus 21b. 20b minus 21b कितना होगा? It will be minus b, मतलब minus 1 बचेगा. ठीक है, minus b equals 32 minus 33. 32 minus 33 is again minus 1. So b क्या मिल गया? b is equal to 1. Minus minus cancel हो जाएगा. b will be equal to 1. Yes, Mitansh, what will be the next step? So b is equal to 1 upon x plus y. So 1. No, wait. b मिला ना, a थोड़ी मिला है अभी तक. Yes, sir. A is left. So sorry. So we will put the A in the first equation. Put b is equal to 1 in equation 1. 1. Correct. Do it and tell me the answer for a. Equation 1 क्या है? 9a plus 5b equals 8. Okay. So 9a plus 5 into 1 equals 8. Yes, Veer, what is the answer?
Sir, I have a doubt. So can you solve by taking LCM of B? Nothing will change. Now you will get the answer of A first. No, sir, because I have a doubt in B. I got A equal to -2, so I put that in equation 1. नो नो, ये So तो नहीं आएगा, ये आपको 1/3 आना चाहिए. that's why can you solve one time in B? B also. नो नो वेट, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे कैलकुलेशन में. वेट, लेट मी चेक. No, correct. The value of A and B are correct. What I have got. These values are correct. वीर, आपने कुछ मिस्टेक किया होगा इसको कैंसलेशन करने में. कि अगर आपने अगर उसको इक्वेट किया है तो आपको इक्वेशन क्या बनेगा? 3A equal to -6 बनता है. Then A equal to -6/3. नहीं, वो गलत ही है ना, आपको इक्वेशन ही गलत मिला है. आई थिंक समवन एल्स वाज आल्सो सॉल्विंग बाय दैट मेथड ओनली. कली वाज. Yes, Kali, did you equate variable B? Yes, sir. Did you get the answer as 1/3? Yes, sir. 1/3. 1/3. What were your equations after multiplying? After making the variable same, can you write out your equations? So my equation was What happened? Why so much of time? Where did you get the correction? Anyways, I'll continue with the sum. Yes. can Anyways, I'll continue with the sum. B is 1 and A is 1/3. अब मैंने B को क्या लिया था? What was B और what was A? ठीक है, तो पहले A का लिखता हूँ. 1/x plus y was equal to A. Correct. 1/x plus y was equal to A. ठीक है, तो A की वैल्यू क्या मिली है? A is 1/3. So A की जगह पे मैंने लिखा 1/3. सही है. अब क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा. ओके, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा. 3 इक्वल्स और x plus 1 will get multiplied with this one, so you will get x plus y equals 3. ओके, अब ये भी एक इक्वेशन ही मिला है, आंसर नहीं मिला है, ये भी एक इक्वेशन मिला है. तो नेम दिस इक्वेशन एज 3, क्योंकि 1 और 2 तो आपने पहले लिख दिया था, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दो. ठीक है, और इसके बाद ये हो गया, आपने A का काम कर लिया. अभी B के लिए, तो B आपने किसको लिया था? 1/x minus y equals B था. ठीक है,
So 1 upon x minus y equals 1. B की value 1 है. Now this x minus y will go there and multiply. So 1 equals x minus y. ठीक है, ये एक और इक्वेशन मिल गया. नेम दिस एज इक्वेशन 4. ओके, अब क्या करेंगे? अब ये दोनों इक्वेशंस मिल गए हैं. यस हीथ. Sir, can you explain once again what to read 1 upon x plus y from 1 upon x plus y? सी आपने ये सब्स्टिट्यूट किया था आपने स्टार्टिंग में. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू अभी मिल गई है, तो मैंने a की जगह पे 1/3 लिखा. ठीक है, ये a की जगह पे 1/3 लिख दिया. अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वल टू है ना बीच में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मिला 3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. तो ये एक इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स 3, जिसका इक्वेशन नंबर 3 नाम है. ठीक है, वैसे ही b को मैंने क्या लिया था? 1/x माइनस वाई को b लिया था. Yes, sir. तो b की जगह पे 1 लिख दिया. अब ये x माइनस वाई इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे. तो आपको मिल गया x माइनस वाई इक्वल्स 1, जिसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन 4. ओके, अब इससे मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ x और y? कैन एनीवन टेल मी? इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आया है. ओके, यस मितांश. Sir, we have to plus this sum. X plus y is equal to 3 minus y is equal to 1. करेक्ट. सो अगेन वील हैव टू सॉल्व. जैसे हम लोग इक्वेशंस को इसको इसी देखो, जो आप टॉपिक कर रहे हो ना, इसका नाम क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. तो आप साइमल्टेनियसली इसको वापस अभी सॉल्व करोगे. तो हियर यू ऑलरेडी नो दैट इज प्लस वाई माइनस वाई है. तो आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को ऐड करना है. ठीक है, जैसे जैसे पता है हमने वो वाला सम किए थे जहाँ पे 73, 37, 37, 73 था. ये वाले सम्स थे. तो इसमें आप पहले एक बार ऐड करते थे, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे, तो आपको 2 इक्वेशंस मिलते थे. एंड उन 2 इक्वेशंस को आप लास्ट में वापस ऐड करते थे. ठीक है, तो दिस इज द सेम वे. ये भी यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं हम. ठीक है, तो here I will add it. तो x plus x will give me 2x. Correct. Plus y minus y will cancel. 3 plus 1 is 4. Okay. So x क्या मिल गया? 4/2 that is 2. x मिल गया 2. अब ये x को किस में पुट करोगे? ये x को किस में पुट करके मैं आंसर फाइंड करूंगा? Yes, Kali, can you tell me? Yes, sir. Where should I substitute this value of x to get the value of y? So in the first equation. See, in the In the first equation. फर्स्ट इक्वेशन तो मेरा ये था, कुछ a वाला इक्वेशन था मेरा फर्स्ट वाला तो. Yes, sir. बट उसमें कैसे x पुट कर सकते हैं? No, in this equation, x plus y is equals to 3. Correct. That is equation number 3. So you have to write equation number 3. इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में मैं पुट कर सकता हूँ, इन दोनों में से, और इसी में करना चाहिए बिकॉज ये छोटे से इक्वेशन है, एकदम सिंपल इक्वेशन है. आप किसी में भी करके आंसर ला सकते हो. ठीक है, बट इनमें करना ज्यादा आसान है. सो व्हाट इज माय इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल्स 3. सो 2 प्लस वाई इक्वल्स 3. सो y इक्वल्स 3 माइनस 2 दैट इज 1. तो y मिल गया 1. ओके, एंड राइट योर सोल्यूशन सेट. X is 2 and y is 1. Okay. I hope this is understood. Yes, Pakshal.
Sir, can you do sum number 3, 7 sub question 3? हाँ नेक्स्ट वही करेंगे. Next question is 7 sub question 3. Sub question 2 you can do it for homework. Question number 7 sub question 3. Again same. Let 1 upon x plus y equals a and 1 upon x minus y equals b. So what will the equations become? ये equation बन जाएगा 5a plus 18b equals 7 and ये वाला equation क्या बन जाएगा 20a minus 9b equals 1. This will be my equation 1 and equation 2. ठीक है, वापस लिखता हूँ मैं इनको one below the other. Now this is 20, this is 5, ये 18 है और ये 9 है. ठीक है, तो 18 और 9 को कॉमन सेम बनाना इजी है एकदम. सिर्फ इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम बन जाएगा. ओके, so 9 into 2 is 18 and this equation you don't need to multiply with anyone. That means you multiply it with 1 where the values do not change. Okay, so you multiply the second equation by 2 and multiply the first equation by 1. So ये क्या बन जाएगा 5a plus 18b equals 7 and when I multiply this 2 so I will get 40a minus 18b equals 2. Solve further. Now we'll only add the equations because signs are different. Okay, so this 18 will cancel. 5 plus 40 is 45a equals 7 plus 2 is 9. So a will be 9 upon 45. See ये 45 a के साथ है तो ये नीचे जाएगा denominator में. 9 upon 45 that is 1 upon 5. So I got the value of a as
1/5. Okay. करेक्ट. अब a की वैल्यू मिलने के बाद आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन b टू फाइंड b. Yes, anyone who got the value of b, send me the message. Tell me the answer in the chat box. Five into 1/5. This a is nothing but 1/5. तो a 1/5. 5 cancel हो गया तो बचा क्या 1. 1 plus 18b is 7. This 1 will come here and get subtracted. So 18b is 7 minus 1. So 18b is 6. So b is 6/18. That is 1/3. b क्या मिल गया मुझे 1/3. b is equal to 1/3 और a मिला है 1/5. Sir, how did you get one b equal to 1/3? Can you show me? b 1/3. B equal to 1/3. How did you got? See यार ये इक्वेशन है, इसमें मैंने वैल्यू को पुट किया है. ठीक है, तो a की जगह पे 1/5 पुट किया. Hmm. ये 5 कैंसिल हो गया. 1 बचा. 1 went here. 7 minus 1 is 6. Yes. Then 18 will come down. 6/18. अब a और b मिल गया है. तो a और b मिलने के बाद हम x और y फाइंड करने की स्टेप पे जाएंगे. ठीक है, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन स्टेप. सो 1/x plus y was equal to a. तो यहाँ पे a की जगह पे यू विल पुट a की वैल्यू क्या थी. आई गेस a की वैल्यू क्या थी 1/5 थी. यस हाँ 1/5. इसको कैसे सॉल्व करेंगे. दिस 5 विल गो हियर. दिस x plus y will go here. ओके, 5 equals x plus y. ये एक और इक्वेशन आ गया. लेट्स से इक्वेशन 3. एंड सिमिलरली वी विल डू इट फॉर b also. So 1/x minus y, and what is the value of b? b is 1/3. 1/3. Okay, so cross multiply. See this. So 3 equals x minus y. This will be your equation 4. तो इनको मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ. x plus y equals 5 and x minus y equals 3. तो इनको सिंपली ऐड करेंगे इक्वेशंस को. तो y cancel. x plus x is 2x. 5 plus 3 is 8. So x is 8/2. That is 4. और अगर x 4 मिल गया तो पुट x equals 4 in equation 3 and find the value of y on your own.
what is the value of y? Yes, send me the answer. So the value of y is 1. ओके, so y मिल गया 1. तो solution set क्या हो जाएगा मेरा? I will write the solution set here. Four comma 1. Okay. Yes, Ali. Can we leave now? No. You do one more sum. Two sums will be done, and then you can leave. Now the next question is about cross multiplication method. The next question, they are specified कि कौन सा method use करना है. They are saying you have to use cross multiplication method. ठीक है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है. ठीक है, तो वैसे तो ये अलग मेथड है, एकदम न्यू मेथड है. और ये मतलब आई एम नॉट, जैसे मैंने आपको एलिमिनेशन के लिए बताया था कि एलिमिनेशन इज अ वेरी यूजफुल मेथड जो आपको हमेशा आगे काम आएगा फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ऐसा नहीं है, कुछ यूजफुल नहीं है, बस ये टॉपिक के लिए पढ़ना है फॉर एग्जाम, दैट्स इट. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे करते हैं, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू वन सम ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल डू 2-3 मोर सम्स एंड देन वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज. ओके, आज एक सम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, थोड़े लेंथी सम्स होते हैं इसके. ओके, so I hope everyone has copied this. I can remove this matter now. Okay, so I hope all of you are focused on the screen. Just listen now carefully because these here थोड़ा ये अलग मेथड है. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं अवॉइड करना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग से ही अच्छे से ध्यान दो तो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ओके, एकदम स्लोली बताऊंगा मैं सम, वेरी स्लोली, सो यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप. नाउ सी, फर्स्ट सबसे पहले तो द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी इन दिस वे. मतलब आप अगर याद करो तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, द क्वेश्चंस विल गिवन इन दिस फॉर्म कि इक्वल टू के पहले यू हैव एक्स एंड वाई एंड इक्वल टू के बाद यू हैड द नंबर. इस फॉर्म में क्वेश्चंस होते थे, करेक्ट. बट इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, अगर इक्वल टू के बाद कोई नंबर है तो इस नंबर को शिफ्ट कर लो यहाँ पे. So it will become +7 equals 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं बचा यहाँ पे तो 0. तो इस फॉर्म में लाना है क्वेश्चन को, इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में. ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही दिया है, बट सेकंड क्वेश्चन में नहीं दिया है, थर्ड में नहीं दिया है, फोर्थ में नहीं दिया। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें दैट इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, नेक्स्ट, नाउ we need कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट्स मतलब जैसे मैंने लिखा है 6x, ठीक है, तो ये x होता है वेरिएबल, इस x को बोलते हैं वेरिएबल, और ये जो नंबर होता है ना x के साथ, इसको मैं कहता हूँ कोएफिशिएंट। ये नंबर क्या होता है? दिस नंबर इज कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कोएफिशिएंट्स क्या है। तो हमें इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट्स को यूज करना है। वी हैव टू यूज कोएफिशिएंट्स। कैसे यूज करेंगे? सी, इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है ए बी एंड सी के साथ। ए बी एंड सी के साथ मतलब ये जो आपका पहला इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन, इसके ऊपर लिखो a1 b1 एंड c1, a1 b1 c1, और जो दूसरा इक्वेशन है उसके इधर लिखो a2 b2 एंड c2। करेक्ट, फर्स्ट वाले इक्वेशन के ऊपर लिख दिया a1 b1 c1, सेकंड के ऊपर लिख दिया a2 b2 c2। करेक्ट, नाउ तो a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 की वैल्यू होगी 4। b1 की वैल्यू क्या होगी? b1 की वैल्यू होगी -5, साइन के साथ -5। ये a1 b1 a2 b2 c2 क्या है? दीज आर, मैं कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, आपको ये वेरिएबल को कॉपी नहीं करना है वैल्यू लिखते वक्त। ओके, मतलब a1 की जगह पे 4x मत लिख देना, x नहीं, वेरिएबल नहीं चाहिए, वी डोंट नीड द वेरिएबल, सिर्फ कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या है उस पर फोकस करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स क्या है उस पर फोकस करना है। सो b क्या मिला? -5, और c क्या मिलेगा? 7, c1 क्या मिला? 7। देन a2 b2 और c2 की वैल्यू, you tell me what will be the value of a2 b2 and c2. Send me in the chat box. I'll call out your name. So the value of a2 will be 3. Okay, b2 will be -4 and c2 will be 6. ये मिल गए वैल्यूज a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, वैल्यूज मिल गए, नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रिमेंबर दिस b c a b, ये सीक्वेंस याद रखना है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, बी कैब या बी सी ए बी, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, इसको लिखना है बी सी ए बी, और नीचे वापस लिखना है बी सी ए बी। दिस इज फिक्स्ड, यू हैव टू राइट इट इन दिस वे। ओके, बी सी ए बी, बी सी ए बी। ऊपर वाला है 1 b1 c1 a1 b1, और नीचे है 2। लिख दिया ये बी सी ए बी, बी सी ए बी। ठीक है, एंड नाउ पुट द वैल्यूज। सो अब b1 की जगह पे b1 की वैल्यू लिखो। क्या है b1 की वैल्यू? -5। ठीक है, b2 के जगह पे b2 की वैल्यू लिखो, दैट इज -4। ओके, इसको, ये जो पार्ट है ना, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इसको मैं इधर कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, c1 और c2 की वैल्यू क्या है? 7 और 6। सो c1 एंड c2 की जगह पे लिख दिया 7 एंड 6। ठीक है, a1 और a2 की जगह पे 4 एंड 3, एंड वापस b1 और b2 आया। ठीक है, तो वापस उसकी वैल्यू लिखनी है b1 b2 की, दैट इज -5 एंड -4। ओके,
लेट्स रिवाइज. पहले मैंने A1 B1 A2 की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, और फिर मैंने BC AB लिखा, ठीक है, वैल्यू फाइंड की एंड देन मैंने BC AB लिखा. ये हो गया, यहाँ तक पहुंच गए. नाउ वी आर अप्रोचिंग टू द एंड ऑफ द सम नाउ. ठीक है, अब हम वैल्यूज पे आएंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को भी वो भूल जाओ क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का अप्रोच ही अलग है और इस सम का एकदम अलग अप्रोच है. ठीक है, अच्छा तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, राइट हियर x upon something will come here, okay, equals y upon something will come here also, equals 1 upon something will come here in the denominator. इन तीनों डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आएगा, क्या आएगा मैं बताता हूँ. ठीक है, तो ऐसे लिखना है x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे हमेशा 1 ही आएगा. ठीक है, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन. अब x के नीचे क्या आएगा, तो x के नीचे इस पहले दो कॉलम पे ध्यान दो, -4 -5 -4 7 और 6, इस पहले दो कॉलम पे ध्यान दो. इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, -5 इंटू 6, ऊपर से नीचे पहले -5 इंटू 6, सो -5 इंटू 6. ठीक है, पुट अ ब्रैकेट हियर, -5 इंटू 6, देन ये ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो गया, देन -4 इंटू 7, -4 इंटू 7, और माइनस साइन डालो यहाँ पे एक, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे -5 इंटू 6, बीच में एक माइनस साइन, देन -4 इंटू 7. समझ में आया मैंने क्या किया, आई विल एक्सप्लेन वन सेकंड. सी मैंने क्या किया, -5 इंटू 6 किया, ठीक है, फर्स्ट, फिर बीच में माइनस साइन, फिर -4 इंटू 7 किया, ओके, और वो लिख दिया. सिमिलरली मुझे y के लिए करना है, ओके, बट y के लिए मैं कौन से नंबर्स लूंगा, मैंने फर्स्ट दो यूज कर लिया था ना, फर्स्ट दो, तो अभी फर्स्ट वाला नहीं आएगा, अभी आएगा सेकेंड और थर्ड. अब सेकेंड और थर्ड को यूज करेंगे y के नीचे के लिए, y के डिनोमिनेटर के लिए. ओके, तो थोड़ा सा मैं y को शिफ्ट कर लेता हूँ राइट हैंड साइड में, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे. y अपॉन हियर व्हाट विल कम, एंड फर्दर 1 अपॉन कुछ आएगा, ठीक है, वो बताऊंगा मैं क्या आएगा. सो y अपॉन, अब इसमें वापस ऊपर से नीचे पहले 7 इंटू 3, माइनस साइन ये फिक्स्ड है, ये आएगी हमेशा. 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज, नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे वैल्यू क्या है. ओके, ये हो गया, ये भी लिख दिया. ओके, और अभी लास्ट 1 अपॉन, ये 1 अपॉन वाले टर्म को मैं नीचे लिखता हूँ जरा, इधर यहाँ पे जगह नहीं है, सो आई विल राइट इट हियर, 1 अपॉन, और 1 अपॉन के लिए कौन सा लेंगे, 1 अपॉन के लिए लास्ट दो. सी पहले फर्स्ट वाले के लिए आपने इन दोनों को लिया था, सेकेंड के लिए आपने इन दोनों को लिया, अब थर्ड के लिए इसको लेंगे, किसको, लास्ट टू, दिस टू. सो 4 इंटू -4 and 3 into -5, -3 into -5. Okay, now what will be the values, तो यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं, तो -5 into 6 is -30, minus sign this, -4 into 7 is -28, equals y upon 7 3s are 21, -6 4s are 24, equals 1 upon 4 into -4, 4 into -4 is -16, minus sign, 3 into -5 is -15. Okay, so x upon -30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +28, y upon -3 and 1 upon -16, minus minus is +15.
Okay. I am taking a new page और नेक्स्ट स्टेप वहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है. सो x अपॉन -30 + 28, व्हाट विल दिस बिकम? -30 + 28, दैट विल बी -2, ठीक है. देन y अपॉन -3 था, ये तो आ गया था y अपॉन -3, और 1 अपॉन क्या है? -16 + 15, -16 + 15 इज -1, ठीक है. ये तीन चीज मुझे लास्ट स्टेप में ये तीन चीजें आ गई है. ओके. अब लास्ट में क्या करना है? तो लास्ट में ये करना है, ये फर्स्ट लिखो x अपॉन -2, ठीक है, एंड कंपेयर दिस विथ 1 अपॉन -1, इसको और इसको. तो ये x अननोन है एंड दिस इज 1 अपॉन -1, तो ये -2 ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स 2, ठीक है. सी ऑल दिस, जिसे तीन चीजें इक्वल है, ओके, ए बी सी, अगर तीनों इक्वल है तो ए और बी सी भी इक्वल है, ए और बी भी इक्वल है, बी और सी भी इक्वल होता है, ठीक है. वैसे ही तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये फर्स्ट वाले टर्म और ये लास्ट वाले टर्म, ये फिक्स्ड है, आपको हमेशा ऐसे ही करना है. फर्स्ट और लास्ट को लिया, सॉल्व किया, एक्स मिल गया. अब सेकेंड वाला, ये वाला सेकेंड वाला एंड लास्ट वाला, इन दोनों को लो अभी, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन. सो y अपॉन -3 इक्वल्स 1 अपॉन -1. So again -3 will go up and -1 is here. So y equals 3. Sum done. थोड़ा बड़ा सम होता है ये, ठीक है. But this is how you have to solve it. Sir, do we have to substitute the values of x? No, 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 no. बस this is end. सम हो गया यहाँ पे, सम खत्म. Okay. Just copy it from here. First this page. थोड़ा शॉर्ट में एक रिवाइज करवाता हूँ मैं. शॉर्ट में एक रिवीजन देखो सम का, कि पहले मैंने ए बी सी डी की वैल्यू लिखी, ए बी सी की वैल्यू लिखी इक्वेशन से, ठीक है. फिर मैंने बी सी ए बी लिखा, बी सी ए बी लिखा, ठीक है. बी सी ए बी लिखने के बाद मैंने उसकी वैल्यूज पुट की यहाँ पे, बी सी ए बी की, ओके. ये बी सी ए बी की वैल्यूज थी यहाँ पे, ठीक है. देन एक्स अपॉन पूरा टर्म लिखते हैं, y अपॉन एंड 1 अपॉन. दिस इज हाउ यू डू इट, x अपॉन, y अपॉन एंड 1 अपॉन, ठीक है. तो x अपॉन क्या लेते हैं? -5 × 6 -4 × 7, ठीक है. देन y के नीचे 7 × 3 6 × 4 एंड 1 के नीचे ये दोनों आएगा, ठीक है. फर्स्ट टाइम ये लिया, सेकेंड टाइम ये लिया एंड थर्ड टाइम ये लिया. ऐसे सॉल्व करते हैं. एंड देन तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था. एंड लास्ट में हमने क्या किया था? लास्ट स्टेप में हमने ये फर्स्ट और लास्ट को इक्वल, मतलब तीन चीजें इक्वल है ना, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, थ्री थिंग्स आर इक्वल. तो a और c को इक्वल लिया, b और c को इक्वल लिया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, you get the answer of x and y. Okay, I have gone very slow and I have tried to explain you each and every step properly, ठीक है. नेक्स्ट टाइम जब सम करेंगे, दूसरा सम करेंगे, तो वापस एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है. बट डोंट फॉरगेट दिस, कॉपी दिस प्रॉपर्ली. दैट्स इट फॉर टुडे. Sir, if we are done, so can we leave? Yes, yes. Goodbye to Bye, all sir. of you. Thank you, sir. Take care.